Good morning, all of you. In this part of alkyl halides and the aryl halides, we will discuss about the classification and the nomenclature. So first of all, we will see the definition of alkyl and the aryl halides. So the species which are formed by the species which are formed by the replacement of one or more H atoms from the aliphatic hydrocarbons, like in that particular example of alkane, we replace one of the H atom of the alkane by the X atom, and thus the compound thus obtained is called the alkyl halides. In second case, we have replaced the H atom from the benzene ring, and thus we obtain that particular compound called the aryl halides. If we replace the H atom from the side chain which is present on the benzene ring, then the compound thus formed are called as the alkyl halides, because it contains the two part, that is the aryl part and also the alkyl part. क्योंकि जो आपका ये toluene है, that toluene has two part. One is the alkyl part, that is the CH3, and other one is the aryl part, that is the benzene ring. So next we will see the classification of the alkyl or the aryl halides or the aromatic halides. On the first way of classifications, the halides may be the aliphatic or the alkyl halides. So what are the aliphatic or the alkyl halides? As you see already in the first example, the compounds which are formed by the replacement of the H atom from the aliphatic hydrocarbons, that is from the alkane, by the halogen atom are called the aliphatic halides. Next one are the aromatic halides. Aromatic halides are those compounds in which the H atom is replaced either benzene ring, directly from the benzene ring, or from the side chain which is present on the benzene ring by the halogen atom are called the aromatic halides. And these aromatic halides are further of two types. First one, aryl halides. The next one, alkyl halides. So what are the aryl halides? In the aryl halides, the H atom directly replaced from the benzene ring. The benzene ring H atom is replaced by the X group, that called the aryl halides. If we replace the H atom from the side chain which is present on the benzene ring, then it is called the alkyl halides. मीन्स अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास तीन तरह के कंपाउंड थे जो आपने देखा. फर्स्ट वन इज द एल्केन टाइप ऑफ कंपाउंड्स, जिसे आप एलिफेटिक हैलाइड्स आपके प्रिपेयर किए गए. आपने कोई एल्केन लिया, एल्केन के ऊपर से को आपने कोई भी एक एच रिप्लेस कर दिया. फॉर एग्जांपल देखो, आपने ये एच रिप्लेस कर दिया, और किसके द्वारा रिप्लेस किया आपने? दैट इज रिप्लेस्ड बाय द एक्स, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द x1, यानी x के द्वारा. वो कोई भी h हो सकता था, जो हमने सर्कल लगाया वो भी हो सकता है. आप ऊपर से लिख दो, बिकॉज ऑल आर सेम, क्योंकि यहाँ पे फ्री रोटेशन है कार्बन कार्बन के बीच, क्योंकि ये आपके एल्केन्स है, तो ये आपके एलिफेटिक हैलाइड्स कहलाते हैं. नेक्स्ट, जो बेंजीन के ऊपर जो डायरेक्टली अटैच एटम है, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला आप सभी जानते हैं, दैट द फार्मूला ऑफ द बेंजीन इज C6H6, means on each of the carbon atom there is one H atom, so we can replace any of the H atom by the X, and that called the एरोमेटिक हैलाइड्स. अपने क्या कह देंगे? एरोमेटिक हैलाइड्स. तो एरोमेटिक हैलाइड टू टाइप्स के हैं. एक आपके एराइल हैलाइड, जो अभी हमने बताया कि डायरेक्टली आप एच एटम को रिप्लेस कर दे फ्रॉम द बेंजीन रिंग, तो दैट कॉल, तो ये आपके बोलो कौन बन गए यहाँ पे? दीज आर दी एराइल हैलाइड्स. जो बेंजीन रिंग के ऊपर जैसे ही CH3 ग्रुप लगा हुआ है, दैट कॉल द साइड चेन. ये क्या कहलाती है आपकी? दैट इज द साइड चेन. अगर हम साइड चेन के ऊपर से H हटा दें और वहां पे बोलो क्या लगा दें हम? ये हेलोजन लगा दें, जैसे Cl हमने लगाया, तो आप उन्हें कहते हैं एर एल्काइल हैलाइड्स. तो आप उन्हें क्या कहेंगे? एर एल्काइल हैलाइड्स. और इनके नाम क्या क्या हैं? देखो, ये सिंपली बेंजीन था, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दे तो दैट पर्टिकुलर कंपाउंड कॉल्ड द टॉल्वेन, या आप उसे मिथाइल बेंजीन कह देते हैं. और अगर हम बेंजीन के ऊपर जो CH3 लगाए, जो टॉल्वेन था, अगर हम उसका एक H हटा दें, अगर हम उसका क्या हटा दें? एक H रिमूव कर दें, दैट इज कॉल्ड द बेंजाइल ग्रुप. तो आपका ये बेंजाइल ग्रुप बन जाता है. और बेंजाइल के ऊपर क्या है यहाँ पे? What is present on the benzyl group? Cl, so called the benzyl chloride. If Br is present, then it is called the benzyl bromide. If OH is present, then it is called the benzyl alcohol. So that is the benzyl group. Next, we will see the classification of the alkyl halide. We will see the type of the alkyl halides. The alkyl halide may be the monohalides, may be the dihalides. So the compound which contain only one X group are called the alkyl monohalides. अगर आपके किसी कंपाउंड के अंदर एक ही X
present, only one X, fluorine, chlorine, bromine or iodine, any one of the X is present, then called the alkyl monohalides. For example, in that particular case, the name of the compound is, because there are the two carbons, so called the eth, single bond is present, so called ane, or group is present, that is the chloro, which act as the secondary functional group, act as the substituent. There are some functional groups which always act as the secondary functional group. Here the halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine, these all always act as the secondary functional group, whether they are present alone or not, चाहे वो अकेले हों चाहे ना हो. अक्सर होता क्या है, जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, व्हेन दे आर प्रेजेंट अलोन, दे एक्ट एज द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, दे एक्ट एज द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, वो आपके सफिक्स की तरह काम करते हैं. और ये किस तरह से काम करेगा यहाँ पे क्लोरो, क्योंकि पहले लगा है, सो कॉल्ड द प्रीफिक्स. तो आप इसे क्या कहेंगे, ये यहाँ पे प्रीफिक्स का काम कर रहा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स. प्री का मतलब जो पहले लगे, देखो इससे पहले लगा है, सो कॉल्ड द प्री. अगर जो आगे लगते हैं फंक्शनल ग्रुप, जैसे कोई कंपाउंड इथेनॉल होता है, इथेनॉल, तो वो आपके उसके आगे लगता है, उसकी राइट हैंड साइड में लगता है. तो जो आगे लगे उन्हें आप क्या कहते हैं, सफिक्स. तो ये है प्रीफिक्स. तो ऐसा आपसे पूछा जा भी सकता है एग्जाम के अंदर. सो द कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली वन एक्स ग्रुप आर कॉल्ड द एल्काइल मोनोहैलाइड्स. द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज क्लोरोइथेन. Next, alkyl dihalides. As the name shows that there are the two, di means two. There are two halogen atoms are present in that compound. So the compounds which contain two X group are called the alkyl dihalides. Where these two halogen atom are present, ये दो halogen atom present कहाँ है? These two halogen atom may be present on the same carbon atom or on the adjacent carbon atom. Like in that particular case, these two Cl are present on the adjacent carbon atom. If you do the numbering on the basis of the IPAC naming, that is the carbon atom number 1 and 2. So these two Cl are present. One Cl is present at C1 position, other Cl is present on the C2 position. So what is the IPAC name? Because there are the two carbon atom and there is a single bond, so we use the word root as the eth and primary suffix as the ane. So the ethane. Now there are the two groups Cl which are present as a substituent, which are present as a secondary prefix जो पहले present है उससे. So position is 1,2, so called 1,2-dichloroethane. And such type of compound are called as the vicinal dihalides. हम इन्हें vicinal कहते हैं. अभी हम types भी देखेंगे alkyl dihalides की. But in second case, the two Cl are present on the same carbon atom. Such type of dihalides are called as the geminal dihalides. And in that particular case, the name of the IPAC name of that compound is 1, 2 is the numbering. At the C1 position, there are the two Cl group are present. Present. So what is the IPAC name? Two carbon, so it single bond, so called the ane. These two Cl are present at the one position, so called 1,1 dichloroethane. So the name is 1,1 dichloroethane. Next, the type of the alkyl dihalides. The type of the alkyl dihalides, first one is the vicinal dihalides. What are the vicinal dihalides? The compounds in which the two halogen atom are present on the adjacent carbon atom are called the vicinal dihalide. As in the first example जो अभी हमने नीचे लिखा 1,2-dichloroethane, जो example है ये किसका है? ये vicinal dihalide का example है, because in that case the two Cl are present on the adjacent carbon atom. Next one are the geminal dihalides. So what are the geminal dihalides? The compounds in which the two X groups are present on the same carbon atom. दो halogen जो है वो same carbon atom के ऊपर present हो. So here is the example. That is the 1,1-dichloroethane. That is the example of geminal dihalides. So that is the slight difference between the vicinal and the geminal dihalides. But in some cases, जब हम आगे जाके हम इनकी जो स्टेबिलिटी को हम देखेंगे, तो जो आपके जेमिनल डाइहैलाइड्स होते हैं, विसिनल जो डाइहैलाइड्स होते हैं, if the smaller group, in case of the vicinal dihalide, if the smaller group like fluorine, chlorine, bromine, they are present on the adjacent carbon atom, they are stable one. But if the two iodine atom are present on the adjacent carbon atom, the compound is unstable towards the heat. वो जो compound है वो unstable हो जाता है towards the heat. देखो कुछ इस टाइप से, मान लीजिए हमारे पास ये CH2 और यहाँ पे हम I लगा दें. Similarly हम यहाँ पे CH2 और I लगा दें, और अगर हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड को थोड़ा सा हीट कर देते हैं, देखो इस टाइप से हीट करते ही साथ, क्योंकि लार्जर साइज है और जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से CI बॉन्ड विकर भी होता है. आगे हम स्टडी भी करेंगे, तो I2 लॉस हो जाएगी. देखो यहाँ से
और जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथीन। तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे इथीन में, जस्ट सिंपली बाय हीटिंग, सिंपली हीट करने से ही। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द एल्काइल मोनोहैलाइड्स। वो आपके कितने टाइप के हो सकते हैं मोनोहैलाइड, मींस इफ देयर इज ओनली वन हैलोजन, so in which way the halogen is present. So alkyl halide may be of three types: the primary alkyl halide, the secondary, maybe the tertiary alkyl halides. So what are the primary alkyl halide? As the name suggests, primary, primary means 1 degree से हम इसको represent करते हैं. So what's the definition of primary alkyl halides? So alkyl halides in which the carbon containing Cl is attached with one alkyl group or no alkyl group. आपका जो कार्बन जिसके ऊपर आपका Cl अटैच है, देखो ये जो कार्बन जिसके ऊपर आपका कौन अटैच है, ये Cl, अगर वो कार्बन एक ही R ग्रुप से अटैच हो है, मिथाइल इज द एल्काइल ग्रुप, एक ही एल्काइल ग्रुप से अटैच हो या एक से भी अटैच ना हो, तो आप उसे क्या कहते हैं, दिस कॉल्ड द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। आपने क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी जगह देखो यहाँ पे C और यहाँ पे Cl, देखो ऐसे, और अगर हम जो हमारे यहाँ पे तीनों के तीनों अगर हम H अटैच कर दे देखो इस टाइप से, सो दैट इज ऑल्सो द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप देखेंगे द कार्बन कंटेनिंग Cl इज अटैच्ड विद नो एल्काइल ग्रुप। ये कार्बन जिसके ऊपर Cl अटैच है वो कार्बन किसी भी एल्काइल ग्रुप से अटैच नहीं है, तो भी प्राइमरी आपका एल्काइल हैलाइड है। और ऊपर वाले केस में देखिए ये कार्बन जिसके ऊपर Cl अटैच है, ये कार्बन एक ही R ग्रुप से अटैच है, सो इट इज द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। So next one is the secondary alkyl halide. What are the secondary alkyl halides? Similarly like that of the primary alkyl halides, जिसमें हमने कहा था the alkyl halides in which the carbon containing Cl or the halogen is attached with one or no alkyl group या one or no carbon atom are called the primary alkyl halide. In case of the secondary alkyl halides, what are the secondary alkyl halides? The compounds in which the carbon containing halogen is attached with two alkyl group. See in that particular example, the carbon containing Cl is attached with two alkyl group, that is the CH3 and the CH3. So that is the secondary alkyl halide. तो ये आपके कौन हो जाते हैं, secondary alkyl halides. Similarly, the tertiary alkyl halide. What are the tertiary alkyl halides? The alkyl halide in which the X atom containing Cl or the halogen is further attached with three alkyl groups. See in the example, the carbon containing Cl is attached with 3 R group, is attached with 3 alkyl group, 3 CH3 group. CH3 group are the alkyl group. C2H5 also the alkyl group. Now you can see the IUPAC name of these compound in these all the three cases. The example of the primary alkyl halide. The name of that particular compound is क्लोरोइथेन, बिकॉज देयर आर दी टू कार्बन, देखो यहाँ पे टू कार्बन एटम है और इसके बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ANE और आपका सब्स्टिट्यूएंट Cl है, सो द क्लोरोइथेन। और जो हमने दूसरा एग्जांपल लिया था इसका नाम क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा क्लोरोमीथेन, क्योंकि इसके ऊपर एक ही तो Cl है और कार्बन हमारे पास सिर्फ एक है, तो इसलिए हम इसको कह देंगे क्लोरोमीथेन इज द नेम। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरोमीथेन, क्लोरो और मिथ और एन, तो इस टाइप से इसका नाम। नेक्स्ट वन का हम IUPAC नेमिंग देखते हैं। देखो नंबरिंग हमें क्या देखनी होती है, स्टेट चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन को हमने नंबरिंग किया 1 2 3। आप कभी भी इस बात को लेके पजल ना हो, आप चाहे इस कंपाउंड को देखो इस टाइप से लिख दें, उसका वे एक ही रहेगा। देखो CH3, देखो आप ऐसे लिख दें, बिकॉज समटाइम सम ऑफ द स्टूडेंट आस्क सर दैट इज नॉट द स्टेट चेन, दैट इज द स्टेट चेन। देखो स्टेट चेन हम देखो बिना पेन को उठाए जब हम वन कार्बन से सेकंड, सेकंड से थर्ड की तरफ जा रहे हैं, देखो हमने पेन को ऊपर नहीं उठाया, कंटिन्यूटी हम जा रहे हैं, दैट इज द स्टेट चेन। तो ये स्टेट ही है, देखो ये स्टेट ही है, तो ये दोनों एक ही तरह के कंपाउंड है। सो जब हम इनकी नंबरिंग करते हैं, देखो स्टेप से 1 2 एंड 3, तो टोटल प्रिंसिपल चेन आपकी ये बन गई। प्रिंसिपल चेन के अंदर आपके 3 कार्बन है, तो क्या कहेंगे आप इसे, प्रोपेन, तो इसलिए हमने देखो ऊपर प्रो और ANE लिखा है। नंबर 2 पोजीशन के ऊपर आपका Cl है, सो कॉल्ड द 2 क्लोरो, सो दैट इज द 2 क्लोरो प्रोपेन। सिमिलरली नेक्स्ट केस आप उस कंपाउंड को कुछ इस टाइप से भी लिख सकते थे, देखो ऐसे CH3 फिर C फिर CH3, देखो इस टाइप से किसी एक ग्रुप को, चाहे CH3 को आप नीचे दिखा दे, चाहे आप ऊपर लिख के दिखा दे, और ये हमने Cl लगा दिया, सो दैट इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ये आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो, चाहे आप इसको टर्न करके दिखा दे तो भी एक ही बात है। अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3, देखो इसी टाइप से,
तो जब हमने नंबरिंग की इसकी 1 2 3 तो क्या हुआ, वही 3 कार्बन है प्रिंसिपल चेन के अंदर, तो प्रोप और एन हमने लिखा है, देखो प्रोप और एन। उसके बाद 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक CH3 जो भी 2 पोजीशन पे C2 पे, Cl भी C2 पोजीशन पे है, सो कॉल्ड द 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोप एन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिखा, क्लोरो का फर्स्ट लेटर C है, मिथाइल का फर्स्ट लेटर M है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाएगा। सो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो गया। तो ये थे आपकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन टाइप आपके मोनोहेलाइड्स की। तो जो आपके टाइप्स ऑफ एल्काइल मोनोहेलाइड्स है वो आपने देखा कि वो 3 तरह के हो सकते थे। विद प्राइमरी को आप 1 के ऊपर डिग्री लगा के भी आमतौर पे लिख देते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, 2 के ऊपर डिग्री लगा देते हैं तो दैट कॉल्ड द सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, 3 के ऊपर डिग्री लगा देते हैं दैट कॉल्ड द टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आईपैक नेमिंग। जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया उस चीज को अब हम दोबारा से देख लेते हैं। आपके जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनको ये जो फंक्शनल ग्रुप इनको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एक्स है ये कौन हो सकता है, दैट में बी द फ्लोरीन, दैट में बी द क्लोरीन, ब्रोमीन और द आयोडीन। दीज आर द ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 17 में कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। एस्टेटाइन इज एन रेडियोएक्टिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह कभी एक्ट नहीं करते, सेकेंडरी की तरह ही एक्ट करते हैं। इनके लिए वर्ड यूज करते हैं हेलो, मींस फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस टाइप से आप यूज करते हैं आईपैक नेमिंग के दौरान। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंपाउंड है, जैसे अभी हमने पीछे देखा CH3 CH2 Cl। तो अगर हम इसकी आईपैक नेमिंग लिखना चाहें तो कैसे लिखें, उसके लिए बेसिक जो पार्ट होते हैं, जब भी हम आईपैक नेमिंग लिखें तो बेसिक 5 ही पार्ट होते हैं किसी भी कंपाउंड के मैक्सिमम। आईपैक नेमिंग जब लिखते हैं वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो ये होते हैं। फर्स्ट वन इज द वर्ड रूट। सबसे पहले जब भी हम आईपैक नेमिंग लिखते हैं तो हमें वर्ड रूट लिखा जाता है। वर्ड रूट मीन्स जो हमें प्रिंसिपल चेन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो प्रिंसिपल चेन में आपके टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, जैसे इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो प्रिंसिपल चेन है उसके अंदर 2 ही कार्बन एटम है यहाँ पे। तो जब 2 ही कार्बन एटम है इसके अंदर तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे इथ। 1 होता तो मिथ, अब 2 है तो इथ कहेंगे आप इसे, तो इथ कह दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नंबर 2। देखो हमने सीक्वेंस लिखी है 1 2 3 4, इसी सीक्वेंस में ही आपको नेम लिखने होते हैं। तो नंबर 2 के ऊपर कौन आता है, आपका प्राइमरी सफिक्स, जो हमें ये बताता है वेदर द प्रिंसिपल चेन इज सैचुरेटेड और द अनसैचुरेटेड। मीन्स whether the single bond is present in between the carbon atom of the principal chain, or double bond is present, or the triple bond is present. If single bond is present, then you will add the ane after the word root. If double bond is present, you will add the ene after the word root. If triple bond is present, you will add the yne after the word root. As we add ane after the word root in that particular here is the eth, because the number of the carbon atom in the principal chain are 2. So the word root is it, primary suffix is ane, and there is no secondary suffix, because the point number 3, that is the secondary suffix, which gives the information only about the primary functional group. As we already discussed that the halogens can never act as the primary functional group, they always act as the secondary functional group. Means in that particular case there is no primary functional group, means no secondary suffix. Next one, point number 4, primary prefix. Primary prefix tells us about whether the principal chain is cyclic or the acyclic. In that particular case, the principal chain is acyclic. So we have no need to add the cyclo word. तो जब आपकी प्रिंसिपल चेन साइक्लिक होती तो हम साइक्लो वर्ड यूज करते हैं बिफोर द वर्ड रूट से पहले। अब क्योंकि एसाइक्लिक है तो हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, वी हैव नो नीड टू ऐड एनीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, it tells about the position of the substituent or the secondary functional group. Here the substituent or the secondary functional group here is the Cl. तो वो कौन है आपका, यहाँ पे Cl है, तो इसलिए हमने Cl ऐड कर दिया। यहाँ पे इसकी पोजीशन 1 ही होगी, जो हमें बताने की जरूरत नहीं क्योंकि नंबरिंग ही हम वहीं से करेंगे। देखो 1 2 इसी टाइप से, तो इसलिए नेम हो जाएगा क्लोरोइथेन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। इसकी हमने नंबरिंग की 1 2, तो इसलिए इसका नेम हो जाएगा वर्ड रूट, इसमें इथ है, आगे ane हमने लगा दिया। आपके सब्स्टिट्यूएंट दोनों Cl हैं, पोजीशन उनकी 1 2 है, तो 1 और 2 के बीच में आपको कोमा जरूर लगाना है। और 2 और डाई जो हमने लिखा, क्योंकि 2 Cl है तो डाइक्लोरो लिखा, उनके बीच में आपको हाइफन जरूर लगाना है। तो द नेम इज 1 2 डाइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट वन, उसी टाइप से प्रिंसिपल चेन आपने देखा कि 2 ही कार्बन एटम है प्रिंसिपल चेन के अंदर, तो आपने क्या लिखा है, नेम इथ प्लस में आगे ane यूज किया आपने वर्ड रूट के बाद, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज किया, ane। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स आपके 2 हैं, 2 Cl हैं,
and these two Cl are present on at the C1 position. So 1,1 लिखा, 2 Cl है तो डाई यूज किया क्लोरो, 1 और 1 के बीच में कोमा लगाएंगे, 1 और डाई डी के बीच में आप हाइफन लगाएंगे. So the name is 1,1-dichloroethane. So the next example is the principal chain has 3 carbon atoms, so we'll use the pro plus में ANE. There is only one substituent, that is the Cl, which is present at C2 position. So we write the 2 before the chloro. So the 2 hyphen chloro, propane is the name. Next one, the principal chain has the 3 carbon atom. So the pro plus में ANE. There are the 2 substituent at the C2 position. One is the Cl, other one is the CS3. So the word root has 3 carbon atom, that is the pro plus में ANE. There are 2 substituent, write their name in the alphabetical order. In the alphabetical order, the C comes before M. So the 2-chloro-2-methyl propane is the name of that compound. Next one is the benzene. के ऊपर देखो Cl is present, so that is the chlorobenzene. Next, if the CS3 is present on the benzene ring, we have already discussed that called the toluene. If we remove the one of the H atom from the toluene, then that particular group is called the benzyl. इसको आप क्या कहते हैं? बेंजाइल. बेंजाइल के ऊपर Cl है, so it is called the benzyl chloride. If we remove one more H, then it is called the benzyl. तो आप इसे क्या कहते हैं? बेंजल. तो आप इसे क्या कहेंगे? बेंजल. बेंजल डाइक्लोराइड इज द नेम. अगर हम ये जो रिमेनिंग 1H है, अगर हम उसको भी हटा दें, so that particular case is called the benzo. अब आप इसे बेंजो कहेंगे. 3 Cl है, so called the benzo trichloride. इसके बाद देखो, जैसे अभी हमने बताया ये बेंजीन है, बेंजीन का एक H आप रिमूव कर देते हैं, सो कॉल्ड द फिनाइल ग्रुप. अगर आप वहां पे Cl लगा दें, सो कॉल्ड द क्लोरोबेंजीन. अगर इफ यू रिमूव मोर देन 1 H atom from the benzene ring, then the remaining species called the aryl. देखो, अगर हम एक H हटाते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर से, तो आप उसे फिनाइल कहते हैं. एक से ज्यादा H हटा दें, तो तब आप उसे एराइल कहते हैं. लेकिन अक्सर हम एराइल और फिनाइल, these two words are used generally in place of each other. हम इनको यूज करते रहते हैं, बट पर्टिकुलरली जब आपसे पूछा जाए व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फिनाइल एंड एराइल, तो आप इस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे. If one H atom is replaced from the benzene ring, phenyl. More than one H atom are replaced from the benzene ring, that called the aryl. जैसे यहाँ पे एक H हटाया और उसके बाद हमने CS3 लगा दिया, that called the methyl benzene, और the common name is the toluene. अगर हम एक H हटा देते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, that called the, अगर हम टोलविन का जो CS3 है, जो साइड चेन है, अगर हम उसका एक H हटा देते हैं, तो CS2 बच गया, that called the benzyl. अगर हम एक H और हटा देंगे, तो उसे आप बेंजिल कहेंगे. जैसे अब हमने यहाँ पे Cl लगाया, सो कॉल्ड द बेंजाइल क्लोराइड, OH लगा दे बेंजाइल अल्कोहल. जैसे इथीन है, इथीन का अगर हम एक H हटा दें, तो आप इसे विनाइल ग्रुप कहते हैं, सो कॉल्ड दैट कॉल्ड द विनाइल. देखो इतने पोर्शन को आप क्या कहते हैं? दैट कॉल्ड द विनाइल ग्रुप. अगर आप Cl लगा दे विनाइल क्लोराइड, Br लगा दे विनाइल ब्रोमाइड, OH लगा दे विनाइल अल्कोहल, तो इस टाइप से आप उसका नाम लिख देते हैं. नेक्स्ट, ये प्रोपीन है. अगर प्रोपीन क्योंकि 3 कार्बन है, तो प्रो डबल बॉन्ड है, तो ENE. अगर हम इसका एक H हटा दें, कहाँ से? जो एलाइलिक पोजीशन है. देखो, जो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं, उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है, नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन, दैट कॉल्ड द एलाइलिक पोजीशन. तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, दैट कॉल्ड द एलाइलिक, ALLYLIC. तो आप इसे एलाइलिक पोजीशन कहते हैं, ये इसकी एलाइलिक पोजीशन है. अगर हम इसकी एलाइलिक जो पोजीशन है, अगर हम उसकी एलाइलिक पोजीशन के ऊपर से एक H हटा दें, तो आप उसे एलाइल ग्रुप कहते हैं. तो क्या कहते हैं? एलाइल. तो देखो, जो एलाइलिक पोजीशन थी, उसके ऊपर से हमने क्या किया? बोला एक H हटा दिया, CS3 का एक H रिमूव हमने कर दिया, दैट कॉल्ड द एलाइल ग्रुप. आगे हम Cl लगा दें, सो कॉल्ड द एलाइल क्लोराइड. Br लगा दें, एलाइल ब्रोमाइड. सिमिलरली इस टाइप से OH लगा देंगे, तो आप एलाइल अल्कोहल कहेंगे आप उसे. तो इस टाइप से ये था इनका नोमेनक्लेचर. So that all about the alkyl halides definition and their nomenclature. Thank you.